Good evening, everyone. I am Kiran Khatri, professor at the MBA program of LJU, along with Miss Preeti Thomas, first year student at LJ MBA. LJ has an illustrious alumni base, and alumni are a significant part of the LJ family. As a member of LJ family, it gives me tremendous joy and pride at the moment to begin the event Alumni Mantras, which is an online series based on interaction between the students of LJ and the esteemed alumni of LJ MBA. Today, we are here to listen and learn from our distinguished alumnus about the success mantras that he has adopted in his life and career. We are going to meet someone who started his business even before completing his MBA. He has a BTech from MS University. He loves adventure sports, trekking, cricket, football, and he's a big fan of web series. So let us welcome Mr. Nishit Prajapati, Managing Director at NIJ Solutions from the 2017-19 batch. Welcome, Nishit. Thank you, ma'am. So, Miss Preeti will be asking some questions to Mr. Prajapati. So, over to you, Preeti. Yeah. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, Nishit sir. So, thank Good you so afternoon. much, Kiran ma'am, thank you so much, Kiran ma'am, for giving us such an amazing introduction about our esteemed alumni, Mr. Nishit Prajapati. And I heartily welcome Mr. Nishit Prajapati to this interaction session and spending time with us and also sharing his successful mantras. So, I also want to thank Kiran ma'am and LJ for giving us opportunity to have a live interaction session with such an estimated alumni. So, Mr. Nishit, I want to ask some of the questions relating to your NIJ solutions and your efforts beside such an successful entrepreneurship. So, my first question I would like to ask is, can you tell me about your career journey since the college and about your work today? Okay. First of all, I would like to thank LJ for giving me this opportunity. As I have seen some posters of featuring previous LJ alumni, which were having a batch of 2005, 2006, and 2010. But I am just recently passed out, just like 2019, and I have started business 3 years ago. So my business is very new to the world, and I am not most successful as the previous ones are having. But then also you have given me the opportunity, so I would like to thank LJ. But hopefully I will make bigger picture than the previous ones, and not the competing with them, but I would like to make a bigger picture in the world. And coming to your question, uh, I completed my graduation from MS in 2016. Then after uh, I joined LJ. There was a 1 year gap between both the graduation, and in that gap, I was preparing for a government job. But there is another story behind that. And, after that, I came to LJ, and LJ was totally different from the previous graduation I was having in MS University. I got to learn so much things from the LJ. First of all, I would like to thank the faculties. The faculties were having a different attention towards every students. They were giving an opportunity to every students. I have learned many aspects from many different faculties. Like Kumar sir was having a different angle to the study. I didn't get an opportunity to learn from the Kiran ma'am, so as the financial subjects were taught by Kumar sir to us. सो कुमार सर आए, अभी भी मुझे याद है कि सेकंड या थर्ड लेक्चर में कुमार सर ने हमें एक चीज ये सिखाई थी कि सब लोग क्वेश्चन आंसर जो है ना पेपर में वो ब्लू कलर से लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर ब्लू कलर से लिखते हैं, लेकिन आप ब्लैक कलर से लिखिए, क्योंकि जो भी फैकल्टी पेपर देखती है वो ब्लू कलर से अपना माइंड एक जगह पे बना चुकी होती है, लेकिन ब्लैक कलर आएगा तो टोटली डिफरेंट लगेगा, तो आप अटेंशन थोड़ा सीख कर सकोगे. सो दैट वाज समथिंग लाइक बी डिफरेंट काइंड का जो क्राइटेरिया है वो कुमार सर ने सिखाया. देन कमिंग टू हिमानी मैम, तो हिमानी मैम ने एक चीज मुझे सबसे बढ़िया ये सिखाई थी कि एक तो डिसिप्लिन में रहना सीखो. हमारे एचआर के स्टूडेंट फैकल्टी थे, वो डिसिप्लिन में रहना सीखो. और पहले ही दिन उन्होंने मतलब एक ऐसा चीज बनाया कि लड़के और लड़की को कंपलसरी साथ में बैठना है. I was an engineering student. I was having a
3 girls among 60 boys in our class, and sitting next to the girl was a new thing, and starting a communication with girl directly was a good experience for me. As far as the faculty was concerned, as Siddharth sir is having a totally different approach to the every questions and everything. He will never disappoint you in also, although he is giving a negative answer, but he will try to never not disappoint you in any manner. वो आपको कुछ भी मतलब डांटेंगे भी तो भी आपको ऐसा लगेगा वो प्यार से डांट रहा है, आपको अच्छा लग रहा है. सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने एलजे में रह के सीखी. उसके बाद एक एलजे का एक्सपीरियंस ये है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी इतनी देते हैं कि आप सुबह जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज स्टेज पे जाना है. रोज का होता था, मतलब प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रेजेंटेशन होंगे, रोज स्टेज पे जाना है. तो स्टेज फियर नाम की चीज आपको 2 साल के बाद आप में दिखेगी ही नहीं. दूसरा, स्टडी वाइज तो हर फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने ही वाले हैं एलजे में, लेकिन जो अलग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो है इवेंट्स में आप शायद पार्टिसिपेट करेंगे या कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वहां पे आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा ही. सो ये चीज मेरी पूरी कॉलेज लाइफ में मुझे सीखने मिली है कि कोई भी सिचुएशन हो, ट्राई किए बिना मत रहो. हमने किरण मैम के साथ हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बॉलीवुड क्विज हमने और कोऑर्डिनेट की थी साथ में किरण मैम के साथ में मिलके. सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. तो किरण मैम के साथ एक चीज शेयर करने का मौका मिला था हमें पूरे 2 साल में. सो दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉलेज. Nishit sir, I want to ask, like, after college, how did you start up your business, and what were the challenges you faced, and like how you grow from their challenges? चैलेंजेस में तो ऐसा है कि पूरा ड्रामेटाइज स्टोरी है. 2016 I passed graduation, and after passing the graduation I started preparing for the government job. अभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा था कि 3-4 एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से मैंने दी थी, और माइनर 1 और 3 मार्क की वजह से 1-2 एग्जाम में छूट गया था सिलेक्ट होना. एंड इन द पैरेलल टू दैट, मेरे डैड का अभी उनका जॉब, वो 15 साल से जॉब कर रहे थे, और ही वाज हैविंग अ सैलरी अराउंड 1 लाख पर मंथ. बट अभी कुछ उनका क्राइसिस ऐसा चल रहा था कि पिछले 12 महीने में उनको सिर्फ 6 या 7 महीने की सैलरी मिली हुई थी. तो थोड़ा इकोनॉमिकली भी हम वीक हो गए थे, प्लस डैड भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस जॉब से. सो अभी वहां पे एक डायलेमा ये फेस किया मैंने कि मैं गवर्नमेंट की जॉब को आगे कंटिन्यू करूं, मतलब प्रिपेयर करने के लिए, या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचूं. क्योंकि डैड अभी जॉब से फेडअप हो चुके थे. उनको नई जॉब में वैसे उनका बहुत पुराना सपना था कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी थी वो चलाते चलाते उनको ये मतलब स्टेप लेने का हिम्मत नहीं आया था अभी तक. तो जब मैंने वो एक फेज आ गया था कि अब क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही थी उस जॉब में, वो कंपनी कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रही थी, तो मैंने डैड को सामने से ऐसा बोला है कि लेट्स स्टार्ट द बिजनेस. मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, आप अपने तब तक नोटिस पीरियड दे दीजिए कंपनी में, तब तक मैं जो भी होगा मतलब अपनी तरीके से कर लूंगा. और पैसे थे नहीं, क्योंकि 12 महीने में 6 महीने की सैलरी हुई थी. मेरा भाई पढ़ रहा था साइंस, ही वॉज डूइंग बायोलॉजी इन साइंस, एंड मैंने भी अपना अभी इंजीनियरिंग खत्म किया था और गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा भी कोई जॉब नहीं था. तो पैसे थे नहीं घर में, और धंधा भी स्टार्ट करना था. पैसे के बिना धंधा स्टार्ट होता नहीं. तो पहले मैंने ये किया कि जो भी हो फर्स्ट स्टेप करके रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं कंपनी का. तो तब पैसे एक चीज के आए थे कि मैं जब छोटा था तब पापा ने LIC का वो किया हुआ था, जो हर फैमिली अपने जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में हर फैमिली में होता है LIC वाला. सो LIC मेरी वो मैच्योर हो चुकी थी, तो मेरे अकाउंट में कुछ 60,000 थे. तो मैंने जाके पहले ये किया. तब जब मैंने 2060 जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, तब GST नहीं आया था, तब था वेट, VAT करके आता था. तो मैंने जाके पहले ये किया कि वेट नंबर ले लिया, उसके लिए 55,000 लगते हैं. वो नंबर ले लिया. उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब रिसर्च करना चालू कर दिया कि अब आगे आगे क्या करना है. लेकिन तभी सडनली एक ऐसा चेंज आया कि पूरा इंडियन इकोनॉमी हिल गई थी. उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था GST, और सब धंधे मतलब जो बरसों से काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, उसको भी तकलीफ हो गई थी इम्प्लीमेंट करने में कि अभी कैसे पूरा कल्चर ही चेंज हो गया था कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे इस GST के साथ. क्योंकि वेट में ऐसा था कि आप 5 लाख का माल खरीद के 8 लाख का भी बिजनेस करते हो तो उसका कोई ट्रैक नहीं कर पाता था. लेकिन GST में ऐसा था कि आपके स्टॉक में जो चीज पड़ी होगी वो भी ट्रैक हो सकती है. तो ये सब उनके लिए नया था. अभी मुझे ये फिनोमिना पता चला है, लेकिन जब नया GST आया
तो HSN कोड क्या है, GST नंबर क्या है, वो अलग अलग स्टेट के वाइज अलग अलग आता है। फिर हर चीज के लिए 5% वाला अलग है, 12% वाला, वो सब चीजें मुझे कुछ भी पता नहीं थी। तो वो पूरा मतलब एक नया ही आ गया था लोड। और डैड थे वो, उनका नोटिस पीरियड चल रहा था, तो ये सब पूरा एक संभालना अलग हो गया था। फिर भी हमने कुछ करके करके वो वैट को GST में करवाया, धीमे धीमे आगे बढ़े। फिर जाके मतलब ऐसा शुरू हुआ कि 1-2 महीने निकल गए थे। और स्टार्टिंग का फेज तो ऐसा था कि मतलब कंपनी का डिलीवरी बॉय समझो, मार्केटिंग बॉय समझो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझाने वाला समझो, वो होल एंड सोल में ही था। हम पार्टनर थे 3, लेकिन सब अभी उनके नोटिस पीरियड पे थे। ये पूरा धंधा किया था चालू करने का, तो अभी कुछ ग्रो हुआ नहीं था, तो सडनली वो लोग जॉब नहीं छोड़ सकते। देवर एल्डर देन मी, जो हमारे पार्टनर है, वो हम 3 पार्टनर है निच सॉल्यूशन में, तो दे आर एल्डर देन मी। और वो कंटिन्यूअसली जॉब कर रहे थे, तो उनको छोड़ने के लिए 3 महीने का नोटिस पीरियड था। तो ये अकेला मतलब कोई भी मतलब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर डिलीवर करने भी मुझे जाना है, ऑर्डर नए लाने मार्केट में भी मुझे ही घूमना है। ये सब होल एंड सोल जो भी था पहले 6 महीने तक मैंने किया। फिर पापा का जब नोटिस पीरियड खत्म हुआ तो पापा बैक ऑफिस संभालने लगे थे। बैक ऑफिस संभालते संभालते एक अच्छी हमारी पॉजिटिव चीज ये थी कि पापा इस फील्ड में 15 साल से थे। सो 15 साल में उनका कांटेक्ट इतना हो गया था कि हमें सप्लायर और जो भी फर्म है उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे क्लाइंट्स। फिर भी थोड़ा बहुत करके हम महीने का जो है घर चलाने जितना वो निकल रहे थे, 1-2 महीने उतना निकल रहा था। और 6 महीने के आजू बाजू एक अच्छी चीज ये हुई कि ओमान फार्मास्यूटिकल्स करके है, ओमान में कंपनी है, उसका ऑर्डर हमें मिल गया। अभी उसका ऑर्डर मिल गया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो IEC कोड लगता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए IEC कोड चाहिए। तो IEC कोड भी नया था, क्योंकि बिजनेस सालों से मतलब अब सोचो ना, पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस का सोचा नहीं था। तो IEC कोड भी एक नई चीज थी, उसके लिए भी पूरा गवर्नमेंट ऑफिस में रोज के धक्के खाना, IEC कोड जनरेट करना, वो भी खुद करना पड़ा था वहां पे ऑफिस में जा जाके। उसके बाद ओमान में ये डालने के लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से बिल ऑफ लैंडिंग का अप्रूवल करवाना पड़ता है ना, वो सब अलग अलग बहुत सारे मतलब ऐसा था कि रात को नींद में से उठ के ये पता चलेगा कि क्या करना है। फिर कॉलेज भी अब स्टार्ट हो गया था, अगस्त या अक्टूबर में मैंने स्टार्ट कर दिया था कॉलेज। तो होता था ऐसा कि 9 बजे कॉलेज जाओ, सुबह 3 बजे आके ये एक्सपोर्ट का पूरा संभालने का होता था, क्योंकि मटेरियल बहुत था, पूरा कंटेनर भर के जाना था। तो रात को आके एक पैकिंग भी खुद करना था। और ऑफिस तो कोई था ही नहीं, पैसे नहीं थे तो ऑफिस नहीं था। घर के ऊपर वाला जो रूम है उसमें ऑफिस बना दिया था, 2-3 कंप्यूटर लगा दिए थे। तो पूरा मटेरियल घर की लॉबी में पड़ा रहता था, कंपाउंड में पड़ा रहता था, उसको जाके पैकेज करना है, फिर बॉक्स में करना है, फिर वेइंग मशीन में सब वे करके अलग अलग पैकिंग लिस्ट बनवाना है। वो रात को आके ये जॉब रहती थी, दिन में कॉलेज करना पड़ता था। फिर धीमे 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 करके जब मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ कॉलेज का, तब तक बिजनेस सेटल इतना हो चुका था कि अब हम डिलीवरी बॉय अफोर्ड कर सकते थे, कुरियर वाले को ऑफिस में बुला सकते हैं कि आप आके कुरियर ले जा और मतलब उनका बिल दे देना, उतना अफोर्ड कर सकते थे। फिर जब मैंने कॉलेज कंप्लीट की तो 1 महीना जितना मतलब टाइम लिया कॉलेज में से बिजनेस सेटल होने तक का लिए, मैंने खुद ऑफ लिया था मतलब, क्योंकि कॉलेज अभी क्या नया नया कंप्लीट खत्म किया था। तो वो 1 महीने के लिए मैं घर चला गया था ट्रैकिंग पे। तो ट्रैकिंग से वापस आने के बाद पूरा बिजनेस में मतलब कंसंट्रेट कर लिया, और अभी अच्छा है कि 3 साल में हमारा टर्नओवर 3 करोड़ के आसपास हो चुका है। पर ईयर 3 करोड़ का टर्नओवर अभी हो रहा है। तो इट आपकी मेहनत पेड ऑफ करेगी, लेकिन जो स्ट्रगल है वो आपको करना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन हो। भले हमको वो सप्लायर ढूंढने की जरूरत ना पड़ी, क्लाइंट ढूंढने की जरूरत ना पड़ी, पर ये चीज थी कि पैसे नहीं थे फिर भी बिजनेस चालू करना था, और वो किया। किसी से उधार इतना रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मशीन और वो सब लेने के लिए पैसे लाने पड़े थे, लेकिन वो जो पूरा उधारी करके करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ा था। प्लस मैन पावर भी अच्छी तरीके से कर लिए थे। तो ये था मेरा बिजनेस का थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हो। Okay, listen. So my next question is like, what type of skills do we need to be successful in this industry? I will not particularly tell about this industry, but some aspects will give an idea about this industry, and some aspect will give idea for whole business. So particularly for this industry, opportunity बहुत ज्यादा है। आप मतलब टेक्निकल फील्ड में हो, हम अभी देखो हमारी कंपनी फार्मा में डील करती है। फार्मा में दवाई बनाने के लिए जो वाटर बनता है, RO वाटर है, प्योरीफाइड वाटर है, वो वाटर सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि अभी कोविड के हिसाब से हर जगह फार्मा कंपनी खुल रही है, लेकिन उतना कंपटीशन भी
कि कैडिला हो, इंटास हो, वहां पे 35 साल से पुराने जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है या वेंडर है वो 35 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमें जाके वहां पे काम करने का मिल रहा है। राइट नाउ वी आर वर्किंग इन कैडिला वैक्सीन सेंटर। सो वैक्सीन जो उनका प्रोसेस में चल रहा है वहां पे हमारा काम चल रहा है। सो वी आर अवेयर ऑफ दैट के कैडिला के वैक्सीन कब आने वाली है। कैडिला है, सन फार्मा है, पूरी आप अब तो आप पूरे इंडिया में कोई भी फार्मा कंपनी ले लो, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर है हरिद्वार में, फिर जो भी मतलब कोई भी फार्मा ले लोगे, इंटास, कैडिला, ट्रॉयका है, एमनिल है, बैक्स्टर है, पूरे इंडिया में अपना अभी फार्मास्यूटिकल्स में अच्छा हो जाएगा। लेकिन तब जब हमने स्टार्ट किया तब कंपटीशन इतना था कि 25 साल से पुराने लोग भी वहां पे काम कर रहे थे। तो हमें जाके अपना सिक्का जमाना वॉज लिटिल बिट टफ। फिर भी हमने ट्राई किया कि कर सकते हैं, कि कंपटीशन है, फिर भी एक्सपीरियंस था। पापा का एक्सपीरियंस इस लाइन में 15 साल का था, एंड विदाउट हिम दिस स्टेज पे आकर हम 3 साल में मतलब अभी हमें एमबीए में ऐसा सिखाया गया था, एंटरप्रेन्योर नाम का एक सब्जेक्ट आता है एमबीए में, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो तो यू शुड गिव 1000 डे टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। फर्स्ट 1000 डे विल बी नो रिटर्न। आप गिन के पकड़ सकते हो कि आपको फर्स्ट जो मतलब 1000 डे वो 3 साल का पकड़ के चलते हैं। अगर 3 साल में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है फिर भी यू शुड कंटिन्यू टू दिस बिजनेस, बिकॉज 3 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन वी नीड मरली 1 year टू सेटल, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड्स एक्सपीरियंस इन दिस लाइन। We need courage at that time to start a business, but his experience was much worthy for us. So it was good to have him in our office. So thank you, Nishit, for giving such a wonderful answers to my question and sharing your journey throughout after the college. Thank you. Welcome. So, Nishit, I have one question. So, as you have told me that Corona has impacted your business in a good way. So, how do you see Yes. the future of your business going uh, with the impact of Corona, or any other economic condition that you feel should impact your business? So, what are your business plans for expansion? How do you see your business in the future? First of all, ma'am, Corona has impacted in both way. Positive way, there was a work for us in pandemic also, but we have shut down for 3 months in Corona, and we were sure that we will give each and every salary to our workers without getting work. So जो 3 months pandemic के थे in the March 2022 June 2020, so each and every worker has given salary from us. हर वर्कर को सैलरी दी गई थी उस 3 महीने में, यहाँ तक कि ऑफिस वर्क में भी जो इंजीनियर्स थे उनको भी दी गई थी सैलरी। सो मतलब वो फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम पे भी आया था, लेकिन उतना नहीं आया था कि हम ज्यादा तकलीफ में आ जाए। फिर भी हमने ट्राई किया था कि कोई वर्कर को तकलीफ उस टाइम पे ना पड़े, तो वो अच्छी चीज हुई थी। लेकिन अभी आप जैसे कि फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो हमें अच्छा बिजनेस उस टाइम से मिलना चालू हुआ है। जैसे कि आप बात करें जून 2020 तक हमारा जो टर्नओवर था वो मॉडली अबाउट 1 करोड़ के आजू बाजू हुआ था। लेट्स टेक 80 to 90 lakh, बट आफ्टर जून it was gross amount was like 253 was added in that, so we were achieved a 3 crore target. And future we have just started a digital marketing for us. We have developed a digital market team which is maintaining our social media account. We are targeting customer in rural area also, because पहले ऐसा था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बावड़ा में थी, अहमदाबाद में, एंड अंकलेश्वर, दहेज, वापी और वहां सब भी थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप यहाँ से कितने भी दूर चले जाओ, यहाँ से 10 किलोमीटर में जाओगे तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खुल ही रही है, क्योंकि अब उन्होंने ये समझना स्टार्ट कर दिया है कि फार्मा और दवाई का जो भी बिजनेस है वो आपको अच्छी तरीके से चलेगा ही आने वाले टाइम पे। सो हम फिर अभी भी मतलब ऐसा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मार्केटिंग बॉय थे हम थे, लेकिन अभी भी हम मार्केटिंग करने जाना पड़ता है तो जाते हैं मार्केट में। पहले ऐसा था कि बाइक में जाते हैं, लेकिन हम कार अफोर्ड कर सकते हैं तो हम कार में जाते हैं। महसाणा के एरिया में अभी 3-4 कंपनी नई नई आई है, तो वहां पे जाके मार्केटिंग करना है, फिर पर्सनल मीटिंग करनी है वहां पे जाके। सोशल मीडिया से जितना होता है उतना गैदर कर सकते हैं। प्लस जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, सो सम ऑफ द कंपनीज आर स्टिल डेवलपिंग देयर वैक्सीनेशन प्लांट। जैसे कि एमनिल फार्मास्यूटिकल्स है, तो उन्होंने अभी उनका बायोटेक का प्लांट किया है बावड़ा में ही, वो अभी कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो वहां पे भी हम मतलब ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि वो काम हमें मिल जाए वैक्सीन का प्लांट का।
पूरा. So that is all from our side. So thank you, Nishit. On behalf of the entire LJMBA family, I want to express my heartfelt gratitude to you to giving your time and enlightening our students about your journey, not just in your career, but also your life at LJ. So we are really grateful for you that you have taken those lessons in your life and you have actually adopted them. So you have used the learnings and experiences from LJ to your advantage. So that is really good to know as far as the institute we are concerned. There And are I'm many मैम, बट अभी टाइम का वो ऐसा था तो पूरा कह नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ऋतुजा मैम था, सो शी वाज द कूलेस्ट टीचर यू विल एवर हैव. okay. इंदिरा मैम, द कॉन्फिडेंस शी हैज, मतलब आप खड़े भी नहीं रह सकते अगर आप वीक हो उनके सामने, तो वो आपको कभी भी मतलब फील करा सकती है कि यू आर जस्ट स्टूडेंट. इंदिरा So मैम, देयर आर मैनी फैकल्टीज फ्रॉम व्हिच वी कैन लर्न. yes, so but then it is up to you. It is the learner who learns, not the teacher who teaches, but the learner who learns. So Yes. that's what our dear Mehta sir always keeps saying, that it is the learner who learns. So it seems that you have learned a lot from all of us and you are going to carry it forward. So that is our legacy, and we are really grateful to you that you have carried this legacy of LJ and you are coming back to us and sharing it with us. So that is, I am expressing my heartfelt gratitude. Um, I really love the way you candidly shared your everything about the struggles and challenges that you have been through. And we have heard a lot of cases of sons joining their father's business. But then yours is a unique case where your father has joined a business started by you. Yes, he has taken it forward, then it is a unique case. So, yes, Nishit, you have been an inspiration, I'm sure, to all our students. And your journey has provided us a lot of learning experience. We have gathered a lot of pearls of wisdom from what you have gone through, and of course our students will take it forward. Thank you for your time, and thank you for patiently answering our queries. Thank you, Nishit. Thank you so much, ma'am. So Thank you. I would like thank to thank you, the Preeti, and whole LJ faculties. If I get a chance in this COVID situation, I will like to visit LJ and Sure, give good sure, we will love experience to to have all you. of us. And So let I us am waiting for an event to start get LJ. yes, so let us I hope I'm that this hoping that yes. I'm So hoping that you will ask me to host the Bodybuild Quiz once again. sure. So let us hope that this pandemic situation gets over and we are all together and we can be like a LJ family, host events, enjoy all our events together. So thank you for your Sure, ma'am. time. Thank you everyone for watching. That's all from our side. Thank you again, once again, and bye for now. See you all in Thank the next class.